Assalamu alaikum students. Today my topic of discussion is restricted least square estimators. The topic of the econometric course. Now we will discuss the concept. At first we will discuss the concept of restricted least square estimators, and then I will tell you the properties of restricted least square estimators, and finally properties mean and variance of the restricted least square. We will prove that, and finally we will make the relationship between the variance of restricted least square estimator and the ordinary OLSE, ordinary least square estimators. We will find that the variance of RLSE is always less than OLSE. I will show you it numerically, and we will prove by equations. Now at first we consider the concept of OLSE. We have two concepts. In OLSE we do not use any restriction. This is a without any restriction, and here is some information about any parameters beta. We have a parameters in the model beta, etc., and that information is called the prior information. When parameters are estimated by using some prior information mean pre-existence information. जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद होती है उसकी बेस पे हम अपना नेक्स्ट कोई प्रिडिक्शन करते हैं, कोई पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं, उसको प्रायर इन्फॉर्मेशन कहते हैं. And some prior information about parameter, then estimators are restricted estimators. स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जब हम अपने पैरामीटर्स को किसी प्रायर इंफॉर्मेशन की बेस पे एस्टिमेट करते हैं तो देन वो जो एस्टिमेटर्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड एस्टिमेटर्स होते हैं. रिस्ट्रिक्टेड एस्टिमेटर वो OLS एस्टिमेटर नहीं होंगे, रिस्ट्रिक्टेड एस्टिमेटर्स होंगे. ठीक है. It help to increase the efficiency of estimator. When we have the restricted estimators, when we get the restricted estimators, so what will we get the output? It help to increase the efficiency of estimators. Efficiency in efficiency we study the variance, large and smaller variance. We will and in this and when we have the restricted estimators, the variance of the RLSE, restricted least square estimator, is always less than the variance of ordinary least square estimators. And in our final lecture, in our final discussion, I will prove the relationship between two estimators, and we will prove it numerically, how the variance is less than the variance of ordinary least square estimators. Now we assume y equal to x beta plus epsilon. Here you can see that this is a simple linear regression model. We can say it generalized linear regression model, and students know above model is estimated with some linear restriction which may be expressed as here we use the restriction. We use the restriction in this model r beta equal to r. This is the method of matrices. We use the matrix approach. Here R is this is the order q into 1, beta k into 1, and small r q into 1. Beta here R is used for restriction, and beta is the parameters, and small r is the vector. I discuss here where R is a known matrix of order q is greater than k and q is less than k. Q is the number of restriction to be incorporated. What is the q? Is the number of restriction. द रिस्ट्रिक्शन जो कि हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं. ठीक है. अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है. ऑलरेडी दिस इज़ आल्सो द रिस्ट्रिक्शन आर बीटा इज इक्वल टू आर, एंड वी विल प्रूव इट by matrix approach that how the r beta is equal to r. Now
And beta, what is the beta? Beta, there is a order k cross 1 is a vector of coefficient to be estimated, and R is a known vector of q elements. Now here we interpret two restrictions, namely beta 1 minus beta 2 equal to 0. First restriction is beta 1 minus beta 2 equal to 0, and the other restriction is beta 3 plus beta 4 equal to 1. When we will get this expression, we put 0 instead of this expression, and when we get this expression beta 3 plus beta 4, we put 1 instead of it in the model. Now we have a model y equal to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus beta 4 x4 plus epsilon. You know very well what is the epsilon? Is a disturbance term, error term. Beta 4, beta 3, beta 2, beta 1 are the regression coefficients, and x3, x2, x3 are the explanatory, x4 are the explanatory or independent variables, and beta naught is the intercept. Sometimes we use 0 here, and y is the response variable. So we want to estimate this model. We want to estimate this model subject to these restriction. हम अपने restriction के हवाले से ये मतलब इस model का estimate करेंगे. We would set like this. R, what is R? We discussed before. R, small r is equal to 0, 1, and order is q into 1. R, capital R, 0, 1, minus 1, we take some elements 0, 0, 1, 1, and order is q into k, rows and 2 columns. Beta equal to beta 1, beta 2, beta 4, and order is k into 1, means के 1 column है और k time rows को show कर रहा है, ठीक है. And here is a q is used for restriction. And r beta, now we will multiply r and beta. R and beta equal to this one. You can see this. Now first row, first column, second row and first column, या हमारे पास तो अब कॉलम यही है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम एक्सेट्रा. अब आप इसको देखेंगे कि हमने इसको किस तरह मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. 0. अब हेयर इज़ अ beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, but here is a 5 elements, 1, 2, 3, 4, 5. We leave first element, and last 4 elements will be multiply with beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. 0 plus 1 into beta 1 minus 1 into beta 2 plus 0 into beta 3 plus 0 into beta 4. Now this will be finished out, and now we will start the second row, and with first column we will multiply it like this. 0, we leave the first element, plus 0 into beta 1 plus 0 into beta 2 plus 1 into beta 3 and plus 1 into beta 4. Now we get r beta 0, 1, beta 1 minus beta 2 plus 0 plus 0, and here we get 0 and we get 0. We get 1 into beta 3 and plus beta 4. Now students, we will get here we will get beta 1 minus beta 2, and we will get beta 3 plus beta 4. Other elements which are 0 we do not write because they are 0, and they have not any value in the expressions. These are the restriction I have discussed before. Beta 1 minus beta 2 is equal to 0, and beta 3 plus beta 4 equal to 1. Now you know that 0 1 किसके बराबर होगा? 0 1 is equal to small r.
r beta is equal to r. This is also the restriction, and we have proved it, r beta equal to r. We will use in the properties of our restricted least square estimators in the mean and variance. We will use this assumption, this restriction, and if we move here r beta minus r equal to, then we get the 0. R beta minus r equal to 0. I will tell you later. जी students, now we require the estimated coefficient vector beta steric to satisfy the restriction, so we must want to choose beta steric to minimize. तो अब हमने क्या करना है कि बीटा स्टेरिक को मिनिमाइज करना है, तो वो किस तरह करेंगे? SSE error sum of square we will use here, and we can denote it E prime E bar E equal to y minus x beta steric prime y minus x beta steric. तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये कहाँ से आया है? ये हमारे पास जो y माइनस एक्स बीटा प्राइम एंड y माइनस एक्स बीटा प्राइम, तो यू कैन सी हेयर स्टूडेंट्स y equal to x beta plus epsilon, y equal to x beta steric plus E, and this is the estimated. You suppose that E and here we will move x beta steric other side, y to other side correspond to y E equal to y minus x beta steric, and here we get the value of E y minus x beta steric. We will put this value in the E prime E y minus x beta steric prime y minus x beta steric subject to restriction. तो restriction के हवाले से हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अब then we use the beta steric. Beta is used for just beta is the parameter, just beta is the regression coefficient parameter, and beta steric is used for the restricted parameters. So r beta steric, here we have the restriction r beta steric equal to r, that is r beta steric minus r. r को हम यहाँ पे shift करते हैं, we move there r, तो then we get the 0. r beta steric minus r equal to 0. Here we want to estimate beta steric under restriction which minimizes the SSC using Lagrange's function or Lagrange's ranges multiplier. तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, अब हम एरर इसको मिनिमाइज़ बीटा स्टेरिक को कुछ रिस्ट्रिक्शन के अंदर हम मिनिमाइज़ करते हैं, एसएस एरर सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज़ करेंगे कुछ रिस्ट्रिक्शन के हवाले से। तो जो यूज़ करेंगे हम क्या करेंगे, लैग्रेंजेस फंक्शन को, या हम कह सकते हैं कि लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। तो वो किस तरह हम करते हैं, S इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बीटा स्टेरिक प्राइम वाई माइनस एक्स बीटा स्टेरिक माइनस 2 लैम्डा प्राइम आर बीटा स्टेरिक माइनस आर। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है इक्वेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि y माइनस एक्स, ये हमने यहाँ पे ये जो मॉडल से e की वैल्यू निकाली थी वो e ही हमने इस ई में पुट कर दी थी। तो अब यहाँ पे हम इसको कौन सा फंक्शन यूज़ करें, लैग्रेंजेस का फंक्शन यूज़ करें। तो वो किस तरह हो जाएगा और किसके हवाले से, रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, कौन सी रेस्ट्रिक्शन, हम ये वाली रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे आर बीटा स्टेरिक माइनस आर। तो यहाँ पे आप देख लें 2 लैम्डा प्राइम आर बीटा स्टेरिक माइनस आर, ये वाली हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन यूज़ की। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 2 लैम्डा प्राइम इज़ द मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या रेस्ट्रिक्शन है। अब s इज़ इक्वल टू, इन दोनों को हमने क्या करना है, वी विल मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स, y प्राइम वी गेट y, हेयर इज़ अ प्राइम, y प्राइम y minus and then y prime minus y prime x beta steric and this and then we will multiply both minus beta steric prime x prime y। स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है
कि हमारे पास जब कोई प्राइम वाली टर्म होती है तो जब प्राइम ये जो बार है ये अप्लाई होगा तो ये पोजीशंस भी चेंज करेंगे. वी विल चेंज द पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स व्हेन वी अप्लाई द बार prime. When we apply the prime on the elements, we will change the positions. So then we do not write at first x prime beta steric prime. We will change the position like this, beta steric prime, and then we write x prime here. You can see we multiply both terms, we get beta steric prime x prime, and then we write y, and the last we will multiply this term and this term, x beta minus and minus into minus plus beta steric prime x prime, beta steric prime x prime, and then we write x beta steric. This will not change the position because this has not the prime in prime condition, and we will change the position of these two elements, beta steric and x. Here we enclose these terms, and this is the Lagrange's function and restriction, with restriction minus 2 lambda prime and r beta steric minus r. Then in the next step, y prime y minus बीटा. अब स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आप ये समझेंगी कि देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो हैं डिफरेंट है. ठीक है, बीटा स्टेरिक पे प्राइम नहीं तो यहाँ पे प्राइम है, यहाँ पे एक्स पे प्राइम नहीं है तो हेयर इज़ अ प्राइम, एंड देन वाई प्राइम, एंड हेयर वाई हैज़ नॉट अ प्राइम. तो वी विल कन्वर्ट दिस टर्म into this term, or we can convert this term into this term. We will same these terms. From which method? So then we apply the prime again. We will apply the prime on these elements. How you can see here, students, when we apply, you can see here, when you apply beta y, हम ये हमारे पास जो टर्म है देख सकते हैं आप इसको, या तो हम इसको इसमें बना लेते हैं या इस टर्म को हम इस जैसा बना लेते हैं. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक है, अपनी ईजीनेस के लिए. तो then we will convert this term into this term. Then we apply the prime like this, y prime x beta steric. Now you can see prime. You can see that student, बीटा प्राइम. अब हम जब इस पे प्राइम को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास पोजीशन भी चेंज होगी. क्या आ जाएगा, बीटा स्टेरिक प्राइम फर्स्ट पे आ जाएगा, देन एक्स प्राइम आ जाएगा, देन वाई प्राइम, और वाई प्राइम कट जाएगा, वाई रह जाएगा हमारे पास. हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, बीटा स्टेरिक प्राइम, देन एक्स प्राइम, एंड देन वाई प्राइम. तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखें ये बीटा स्टेरिक, जब प्राइम इस पे अप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, बीटा स्टेरिक प्राइम एक्स प्राइम एंड वाई, दो प्राइम हो जाएंगे तो हमारे पास वाई प्राइम और प्राइम कट जाएगा, बीटा स्टेरिक ये सेम हो जाएगा. देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये इस टर्म पे हमने ये टर्म जो है इस पे हमने प्राइम अप्लाई किया है. तो बीटा स्टेरिक एक्स प्राइम वाई ये हमारे पास हो जाएगा, और ये टर्म उसी तरह आ जाएगी, एंड ये टर्म भी उसी तरह आ जाएगी. ठीक है, ये जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है और फंक्शन है. अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या करते हैं हम स्टूडेंट, देखें गौर से. ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं, एंड माइनस इंटू माइनस माइनस, ये
ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये ऐड हो जाए, या तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है या ऐड हो जाती है, लेकिन हेयर वी हैव द सेम साइंस, माइनस एंड माइनस, तो वी यूज़ माइनस एंड देयर हैज़ अ कोफिशिएंट 1 एंड देयर इज़ अ कोफिशिएंट 1, 1 + 1 2 एंड बीटा स्टेरिक प्राइम एक्स प्राइम एंड वाई, तो हेयर वी विल ऐड, तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो गई है। देन ये कैसे आई है हमारे पास, देखें, अब बीटा स्टेरिक प्राइम एक्स प्राइम एक्स एंड बीटा स्टेरिक, तो हेयर हम एक एक्स प्राइम एक्स को तो यूं ही रहने देंगे, और हमारे पास ये जो बीटा स्टेरिक प्राइम और बीटा स्टेरिक है वो हमने कंबाइन कर लिया, ठीक है, इस तरह। और ये हमारे पास वो रेस्ट्रिक्शन है। अब नेक्स्ट पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि ये हमारे पास जो है स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये कैसे स्क्वायर आ जाएगी, तो देखिए एक्स प्राइम एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ए प्राइम ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरह 2 प्राइम 2 भी 2 स्क्वायर में लिख सकते हैं, और बीटा स्टेरिक प्राइम बीटा स्टेरिक को हम बीटा स्टेरिक स्क्वायर में लिख सकते हैं। इसी तरह ई प्राइम ई को भी हम ई का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स मीन कि ये दोनों जो बेसिस हैं वो क्या हो रही हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास फाइनल टर्म आ जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट उसमें लिखेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, बीटा स्टेरिक प्राइम एंड बीटा स्टेरिक को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, ये इस फॉर्म में हम लिखेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग एस विद रिस्पेक्ट टू बीटा स्टेरिक एंड इक्वेट टू 0, तो हमने इसको साथ 0 के इक्वेट भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए हमने डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर दी है, और वाई प्राइम वाई ये बाहर इधर भी अप्लाई कर दी, साइड पे भी बीटा स्टेरिक के रिस्पेक्ट के लिहाज से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें यहाँ पे एक्स प्राइम एक्स जो है बीटा स्टेरिक स्क्वायर, ये उसी तरह ही आ गया, -2 लैम्डा प्राइम आर बीटा स्टेरिक माइनस आर 0, इस तरह आ गया। अब यहाँ पे ये जो है सेपरेटली हम इस पे अप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ बीटा स्टेरिक वाई प्राइम वाई -2, ये 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह इस टर्म में भी हमारे डेरिवेटिव बीटा स्टेरिक को अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे भी हमने क्या करना है 2 लैम्डा प्राइम, तो यहाँ पे भी इस रेस्ट्रिक्शन से पहले हम इसको डेरिवेटिव को अप्लाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या, और साथ हमने देखे इक्वेट टू 0। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि ये जो टर्म है यहाँ पे देखें वाई प्राइम और वाई में कोई आपको बीटा, क्योंकि ये बीटा स्टेरिक के लिहाज से जो है वो हो रही है, अप्लाई हो रही है, तो बीटा स्टेरिक जो है वो डेफिनेटली, तो ये हमारे पास जो डेरिवेशन है डेरिवेटिव है वो बीटा स्टेरिक के लिहाज से, तो यहाँ पे वो बीटा ही पे अप्लाई होगा, लेकिन अब यहाँ पे कोई बीटा नहीं है, तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या है 0 हो जाएगा। इसी तरह -2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो एक्स प्राइम और वाई है ये पहले आ जाएंगे, और ये जो डेरिवेटिव है वो बीटा स्टेरिक प्राइम पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर बीटा स्टेरिक प्राइम है और यहाँ पे बीटा स्टेरिक है, ठीक है। अगर यहाँ पे बीटा स्टेरिक प्राइम है तो ये फिर भी इसको उसी तरह लेगा और ये कट जाएगा, ठीक है, 1 हमारे पास आ जाता है। और एक्स प्राइम, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या एक्स प्राइम और एक्स जो है बाहर इसी तरह, और ये जो है बीटा स्टेरिक स्क्वायर जो आता है, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म यूँ आ जाएगी, 2 आ जाएगा पहले, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा स्टेरिक, और 2 -1 हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह एक्स जो है वो n-1 हो जाता है, तो जहाँ पे जो 2 है 5 है 6 कुछ भी होगा तो वो 1 उसमें से माइनस हो जाएगा। अब बीटा स्टेरिक 2 - 1 हो जाएगा, और फिर ये डेरिवेटिव अलग से बीटा पे अप्लाई हो जाएगा, तो देखें ये डी ऑफ बीटा स्टेरिक डिवाइडेड बाई बीटा स्टेरिक। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो इक्वेशन इसको गौर से देखें, 2 लैम्डा प्राइम उसी तरह आ जाएगा, और ब्रैकेट में आर, और ये जो डेरिवेटिव है बीटा स्टेरिक पे अप्लाई हुआ, और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा -0, तो ये तो जो इक्वेट टू 0, ये जो 0 था ये अलग है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर 0 ये कैसे आया है कि जब यहाँ पे स्टूडेंट देखें डेरिवेटिव स्मॉल r पे अप्लाई हुआ है, तो हम ये जो है हमारे पास यहाँ पे कोई बीटा r था, यहाँ पे कोई बीटा कोई पैरामीटर नहीं था, तो वो 0 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने इस स्टेप को शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने -0 लिख दिया।
अब नेक्स्ट में हमारे पास देखें ये टर्म, हमारे पास ये टर्म जो है बच गई है, क्या हो जाएगा -2x'y, ये तो ज़ीरो हो जाती है ये वाली, तो ये हमारे पास देखें ये कट जाती है पूरी, तो पीछे रह जाए 2x'y प्लस x'(x) और 2 बीटा स्टेरिक 2 - 1 1, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं। और ये नेक्स्ट जो है हमारे पास ये भी कट जाता है, ये 1 आ जाता है। और -2 लैम्डा प्राइम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है r, ये कट जाएगा और ये r रह जाएगा, r इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, हमने देखें आप ज़रा इस टर्म को गौर से, -2x'y उसी तरह आ जाता है, प्लस इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 2x'(x) बीटा स्टेरिक -2r। अच्छा यहाँ पे अब देखें लैम्डा प्राइम और r है, तो यहाँ पे ये r प्राइम और लैम्डा कैसे आ गया, तो हमने इस पे दोबारा से इन दोनों पे प्राइम अप्लाई किया है। ये हम बहुत जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो हम उस टाइम भी इस पे प्राइम को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लेकिन यानी कि ये जो डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा प्राइम r है, ये किसके इक्वल हो सकता है, इसकी डेरिवेटिव ऑफ ये हमारे पास r प्राइम लैम्डा के इक्वल हो सकता है। लेकिन इसको मैंने आगे चल के आपको समझाया कि आपको जल्दी समझ आ जाए। तो ये हमारे पास क्या लैम्डा प्राइम r हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करते हैं प्राइम, एंड देन वी गेट एंड हेयर द पोजिशंस विल बी चेंज्ड, r प्राइम and lambda prime cancelled out, and r prime and lambda, we get the r prime and lambda, we put here r prime lambda। तो पहले क्या था, lambda prime r था, हमने जो प्राइम अप्लाई किया बार, तो then we get r prime and lambda equal to 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टर्म्स को मूव करते हैं, शिफ्ट, वी विल शिफ्ट द टर्म्स टू अदर साइड, then here beta steric, we need beta steric here, 2x'(x) beta steric equal to and माइनस जो उधर चली जाएगी टर्म, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 2x'(y) एंड हेयर माइनस, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी जब दूसरी साइड जाएगी, तो प्लस 2r प्राइम लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 2 and 2, ये हमारे पास आपस में कट जाते हैं। आप एक और स्टेप भी कर सकती है कि डिवाइडेड 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 को डिवाइड कर दें और काट दें, तो सिंपल हमें पता है कि यहाँ पे भी अगर 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 तो वो कट जाएगा। सेम टर्म्स यहाँ पे अगर सेम टर्म है, यहाँ पे सेम टर्म है, तो वो कट जाएंगी। ठीक है, तो 2 और 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो बच जाता है x'(x) बीटा स्टेरिक एंड x'(y) r प्राइम लैम्डा। अब यहाँ पे हमने बीटा स्टेरिक, वी नीड अ बीटा स्टेरिक रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर की हमें इक्वेशन चाहिए। ठीक है, हमें किसकी इक्वेशन चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर की, बीटा स्टेरिक की। तो वी लीव दिस एम्पटी, तो हाउ वी डू इट, x'(x) यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देन व्हेन वी मूव द अदर साइड, तो this will be divided to these with these terms, beta steric equal to x'(y) plus r prime lambda divided by x'(x). तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जब यहाँ एक साइड पे किसी भी साइड पे लेफ़्ट या राइट पे कोई चीज़ भी जब मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाती है, और अगर डिवाइड हो रही तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होती है, और एक साइड पे माइनस हो रही तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। इसी तरह आपको ये जो रूल्स हैं मैथमेटिक्स के वो आपको आने चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। बीटा स्टेरिक x'(y) डिवाइडेड बाई, क्योंकि जो x' और x है ये स्टूडेंट, ये जो एक टर्म है, लेकिन ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। ठीक है, बिकॉज वी हैव सम ऑपरेटर दैट इज़ प्लस। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर होते हैं ये टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑपरेटर है, इस मीन कि यहाँ पे दो टर्म्स है 1 and 2। ठीक है, क्योंकि दरम्यान में इनके ऑपरेटर आ रहे हैं। ऑपरेटर कौन सा है, कोई भी माइनस प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या है, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है और ये यहाँ इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या यहाँ पे ये जो
अभी आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर ब्रैकेट लिखते तो ऊपर पावर 1 होती है, इनकी पावर अगर 1 है तो ऊपर जाके ये माइनस इन्वर्स में चेंज हो जाएगी। ऊपर हम ले जाते हैं तो एक्स प्राइम एक्स माइनस इन्वर्स एक्स प्राइम वाई, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारे पास क्या प्लस, तो देन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक्स प्राइम एक्स इन्वर्स एंड आर प्राइम लेमडा। अब यहाँ पे हमारे पास, अब गौर से देखें इस इक्वेशन को, ये जो टर्म है आपके पास, ये वाली टर्म, ये किसके बराबर है? आप ये रिग्रेशन एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, बार बार आप कर चुके हैं। तो ये जो एक फार्मूला है मैट्रिक्स अप्रोच का, जो हम एस्टिमेटर्स फाइंड करते हैं मैट्रिक्स अप्रोच के लिहाज से, ठीक है, तो वो ये किसका है हमारे पास एस्टिमेटर, OLS एस्टिमेटर का फार्मूला है। किसका? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का, जो है हमारे पास बीटा कैप इक्वल टू एक्स प्राइम एक्स माइनस इनवर्स एक्स प्राइम वाई। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं, बीटा कैप प्लस एक्स प्राइम एक्स आर प्राइम, तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाता है प्लस आर प्राइम लेमडा। तो ये इक्वेशन 1 आ जाएगी, मेन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 है। तो अब हमें मज़ीद भी ये इक्वेशन चाहिए, वेयर बीटा स्टैटिक इज़ द एस्टिमेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। तो ये तो बीटा ये क्यों कौन सी हो जाती है, ये एस्टिमेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट वो हो जाती है इक्वेशन, वो हमारे पास क्या है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर की इक्वेशन है। तो अब स्टूडेंट्स हम इससे आगे जो हम करते हैं पेज नंबर 5 पे, ये यहाँ पे इक्वेशन ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि इसको हम एक्सटेंड करेंगे। वेयर एज बीटा कैप इक्वल टू एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम वाई इज़ द अनरिस्ट्रिक्टेड OLS एस्टिमेटर ऑफ बीटा। तो ये आपको पता है कि ये हमारे पास कौन सी अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो हम तो अभी हमने जो अभी की थी वो रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन 1 थी, लेकिन हम उसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग आर बाय इक्वेशन 1, ठीक है, 2। अब हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, टू रिमूव लेमडा, टू रिमूव लेमडा। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेमडा को रिमूव करेंगे, आर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आर को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 के साथ। हेयर इज़ इक्वेशन 1 यू कैन सी। तो इसके साथ हम आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल आर को रिस्ट्रिक्शन के लिए। कैपिटल आर बीटा स्टैटिक इक्वल टू आर बीटा कैप प्लस आर, ये हमारे पास ये जो आर है मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। अब यहाँ पे देखें, गौर से देखें क्या करना है, आर बीटा स्टैटिक किसके बराबर है, स्मॉल आर के। ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है जो हमने स्टार्ट में दी थी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके आर के इक्वल हो जाते हैं, और ये क्या आर बीटा कैप प्लस आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम लेमडा। तो अब हमारे पास क्या हो जाता है कि ये जो टर्म है आर बीटा कैप, इसको हम इस तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है, आर माइनस आर बीटा इक्वल टू ये टर्म उसी तरह आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लेमडा, ठीक है, हमने यहाँ पे हमें क्या करना है, लेमडा निकालना है। तो लेमडा को हम खाली छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये लेमडा के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टर्म इधर आ जाती है, आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमने स्टूडेंट्स, ये टर्म ऊपर लेके जाते हैं। तो ये यहाँ पे अगर इसकी पावर होल सारी टर्म की 1 है तो ये ऊपर जाएगी, इन्वर्स में चेंज हो जाएगी। तो कैसे देखें, ये टर्म ऊपर चली जाती है, आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम का होल इनवर्स एंड देन आर माइनस आर बीटा, ठीक है, इक्वल टू लेमडा। तो ये सारी चीज़ अब इसको हम रीअरेंज करके लिख देते हैं, लेमडा इक्वल टू ये वाली हमारे पास टर्म है आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम -1 आर माइनस आर बीटा। तो इक्वेशन 2 ये हमारे पास क्या आ जाती है, इक्वेशन 2। अब हमारे पास एक इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 है। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, लेमडा की वैल्यू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द लेमडा इन इक्वेशन 1। तो वेयर इज़ द इक्वेशन 1, हेयर दिस इज़ द इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास क्या बीटा स्टैटिक बीटा कैप प्लस यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। तो बाकी उसी तरह रहेगा, ये क्या आ जाएगा, बीटा स्टैटिक इक्वल टू बीटा कैप प्लस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम, और लेमडा की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो लेमडा की वैल्यू क्या है, ये वाली देख लें, ठीक है, आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम इनवर्स एंड आर माइनस आर बीटा। ये आपके पास
इक्वेशंस आ गए। इक्वेशन 3 जो मेन इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन आपके पास, रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर की इक्वेशन है। तो ये आगे हमें काम आएगी। तो अभी उसके बाद हम जो हमारा टॉपिक है मीन एंड वेरिएंस, हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर बीटा स्टैटिक।